Life is like a novel, and every day is a new page. If one page is sad, then other will be happy. So just turn the page and enjoy life. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. As I have started with this series on the jurisprudence, and in this series, I have discussed various important concepts relating to the jurisprudence. In the previous video, I have discussed about the historical school of the jurisprudence. Today, I will discuss with the natural law school. That is also one of the most important concept for the examination point of view. If we talk about the natural law school, there is no unanimity concerning the exact meaning of the natural law. In jurisprudence, the term natural law means those rules and principles which have originated from the some supreme source other than the political authority. Various theories have been propounded since the earlier time on the basis of natural law. And this natural law theory was introduced by Albertus Magnus, who elaborated by Thomas Aquinas. So this theory of the natural law was introduced by Albertus Magnus and elaborated by the Thomas Aquinas. If we talk about the natural law theory, natural law is the moral theory of the jurisprudence, which states that law should be on the basis of ethics and morals, and it should focus on what is correct. It says that human being possesses intrinsic value that governs the behavior, and those rules which are inherent in human being, which are inherent in people, and not created by the society or the judges. Some jurists say that these rules have come from God. Some they some find their source in the nature. Others says that they are the product of reason. Thus, these rules are given the different meaning by the different jurists on the basis of their source, such as law, divine law, natural law, moral law, universal law of God, etc. And in the rules of natural law, from time to time, different ideologies and principles have been praised. And this school tells us that law is rational and reasonable. Natural law proposes that law are a logical progression from the morals. Thus, the actions which are morally wrong will be against the law, and the laws which are morally right can't be justified. And the natural law exists regardless of the what law are enacted. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो नेचुरल लॉ थ्योरी है, ये इसके संबंध में यदि आप देखोगे तो अलग अलग जूरिस्ट के अलग अलग मत आपको देखने को मिलते हैं। जूरिस्ट कुछ जूरिस्ट ऐसे होते हैं जो नेचुरल लॉ को ये कहते हैं कि ये वो रूल्स के प्रिंसिपल्स हैं जो इनका जन्म कहीं ना कहीं एक सुप्रीम सोर्स से हुआ है जो पॉलिटिकल अथॉरिटी से अलग है। और कुछ जो जूरिस्ट है इसी थ्योरी के जो प्रोपाउंडर है उनका कहना ये है कि नेचुरल लॉ जो थ्योरी है दैट इज मोरल थ्योरी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, जो कहीं ना कहीं जिसका जो मेन आधार है वो मोरलिटी और एथिक्स है। एंड दैट फोकस ये इस बात पे फोकस करती है कि क्या चीज़ सही होनी चाहिए, क्या गलत है। और यहाँ पे इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू यदि हम देखें, इट पोजेसिव टू गवर्न आवर बिहेवियर, ये कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर को कहीं ना कहीं गवर्न करती है, जो हर व्यक्ति के अंदर एक इनहेरेंट पाया जाता है। एंड दीज आर नॉट क्रिएटेड बाय द सोसाइटी, इसको सोसाइटी के द्वारा क्रिएट नहीं किया जा रहा। कुछ जूरिस्ट ये कहते हैं कि ये जो रूल है कहीं ना कहीं भगवान के द्वारा बनाए गए हैं, और कुछ ये कहते हैं कि यहाँ पे जो ये जो रूल है दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ रीजन। सम सेज दैट इट इज द डिवाइन लॉ, some says that it is the natural law or the moral law or the universal law। तो इसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। यदि हम नेचुरल लॉ की बात करते हैं, इन द नेम ऑफ नेचुरल लॉ फ्रॉम द टाइम टू टाइम वेरियस आइडियोलॉजीज हैव बीन गिवन। बहुत सारी ऐसी आइडियोलॉजी आपको देखने को मिलेगी जो कहीं ना कहीं दी गई है बार बार कि प्रिंसिपल के अलग अलग प्रिंसिपल्स के आधार पे। ये स्कूल हमें कहता है कि भी यहाँ पे जो लॉ है उसका एक मतलब रैशनल और वो रीजनेबल होना चाहिए। और जो नेचुरल लॉ है वो ये प्रपोज करता है कि यहाँ पे जो लॉ है दैट इज द लॉजिकल प्रोग्रेशन फ्रॉम द मॉरल्स, एंड दीज एक्शंस आर मोरली रोंग। जो ऐसे एक्शन जो कहीं ना कहीं मोरली रोंग है, नैतिकता के आधार पे गलत माने जाएंगे, तो वो लॉ के अगेंस्ट भी माने जाएंगे। एंड लॉज विच आर मोरली राइट, जो लॉ जो कहीं ना कहीं मोरली राइट है दैट कांट बी जस्टिफाइड, कोई जरूरी नहीं है कि उसको जस्टिफाई किया जा सके। एंड द नेचुरल लॉ एग्जिस्ट रिगार्डलेस ऑफ व्हाट लॉ वाज एनेक्टेड। वो ये नहीं देखता कि लॉ क्या एनेक्ट हुआ था, वो ये कहता है कि क्या मोरली सही है, क्या चीज़ सही होनी चाहिए, क्या चीज़ गलत है, उसी के आधार पे कानून बनाए गए हैं।
If we talk about the evolution and development of the natural law school is not independent school. It has deep concern with the historical and analytical school. ये उसी को आगे बढ़ाते हुए बनाया गया है. And this theory has been interpreted differently at the different time, depending on the needs and development of the legal thought. ये कहीं ना कहीं ह्यूमन माइंड की एक स्टेट थिंकिंग के आधार पर बना है. तो यदि हम नेचुरल लॉ की बात करते हैं, नेचुरल लॉ बीइंग कोएग्जिस्ट विद द मैनकाइंड एंड द एमनेटिंग फ्रॉम द गॉड, it's from the superior authority to all the other laws. Superior authority is responsible for the law, which is other than the political authority. It is binding over all the globe in all the countries and at all the times, and no man-made law will be valid, and it is contrary to the law of nature. जो मैन मेड लॉ मतलब यहाँ पे कहते हैं कि वो भगवान के द्वारा बनाया गया है और जो कहीं ना कहीं सही नजर आ रहा है वही कानून माना जाएगा. और यहाँ पे ये भगवान के मतलब द्वारा बनाया गया, ना कि आदमी के द्वारा. नेचुरल लॉ की यदि हम बात करते हैं तो नेचुरल लॉ स्कूल जो है दैट इज जनरली रिगार्डेड एज द लॉ ऑफ नेचर, या फिर डिवाइन लॉ, या फिर यूनिवर्सल लॉ, या फिर मोरल लॉ, या लॉ ऑफ गॉड. अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है. If we talk about the natural law, it has been given different meaning at different point of time. अलग अलग समय पे अलग अलग इसको मीनिंग दिए गए हैं. इट इज मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीजन. जनरली आप देखेंगे तो ये रिलीजन के से ज़्यादा प्रभावित है. इट्स लेजिस्लेशन इज नॉट मोरल. वो ये क्या कह रहे हैं कि यदि जो लेजिस्लेशन है यदि वो मोरल नहीं है तो वो लॉ नहीं हो सकता. यदि वो मोरली रोंग है, यदि वो मोरली गलत है, नैतिकता के आधार पर गलत है, तो वो कानून नहीं हो सकता. दीज एन असेंशियल कनेक्शन बिटवीन द लॉ एंड द मोरलिटी. ये स्कूल ये मानता है कि यहाँ पे लॉ और जो मोरलिटी है उनके बीच में बहुत गहरा संबंध है. जब मोरली गलत है तो वो कानून नहीं हो सकता, जो मोरली सही है वही कानून हो सकता है. तो दिस मीन्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स सर्टेन फंडामेंटल राइट्स. आपको पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं, जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम. तो देयर आर मेनी फंडामेंटल राइट्स विच आर गिवन बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड ऑल दीज राइट्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल लॉ. ये जितने भी जो हमें राइट दिए गए हैं ये कहीं ना कहीं नेचुरल लॉ के आधार पर ही दिए गए हैं. नॉट ओनली दिस प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल लॉ, in the end it could be said that natural law school has made a great contribution to the legal jurisprudence of the world including India. अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है इसने. यदि हम नेचुरल लॉ स्कूल की बात करते हैं तो इवोल्यूशन या ग्रोथ की बात करते हैं तो नेचुरल लॉ स्कूल इज नॉट द इंडिपेंडेंट स्कूल. इट हैज डीप कंसर्न विद द हिस्टोरिक एंड एनालिटिकल स्कूल, एंड द प्रोपाउंडर ऑफ द नेचुरल लॉ स्कूल इज ऑफ द व्यू दैट इज द स्टेट थिंकिंग ऑफ द ह्यूमन माइंड. ये ह्यूमन माइंड की कहीं ना कहीं प्रोडक्ट है जो उससे जन्म हुआ है इसका. जो रोमन ज्यूरिस्ट थे जैसे कि थॉमस एक्विनास की हम बात करें तो उन्होंने नेचुरल लॉ को डिफाइन किया था एज ए डिवाइन लॉ. जो एक्विनास थे वो क्या कहते थे, नेचुरल लॉ इज ए पार्ट ऑफ डिवाइन लॉ एंड दिस पार्ट इज अप्लाइड टू द ह्यूमन बीइंग टू गवर्न देयर रिलेशंस एंड अफेयर्स. द इवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ नेचुरल लॉ हैव बीन टेकन प्लेस फ्रॉम पीरियड टाइम टू टाइम. अलग अलग समय पर अलग अलग इसकी डेवलपमेंट बताई गई है. यदि हम देखें तो नेचुरल लॉ की जो डेवलपमेंट है उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया. एंशिएंट पीरियड, मिडिवल पीरियड, मॉडर्न क्लासिकल ईरा एंड द लास्ट वन इज मॉडर्न ईरा. यदि हम एंशिएंट पीरियड की बात करते हैं तो जो कॉन्सेप्ट है नेचुरल लॉ का, दिस वाज डेवलप्ड बाय द ग्रीक फिलोसफर्स हेराक्लिटस इन द 4th century, जिन्होंने ये कहा था कि देयर आर 3 मेन फीचर्स ऑफ द नेचुरल लॉ. यदि हम एंशिएंट लॉ के हिसाब से कहें तो इसको 3 फीचर्स इसको बताए गए थे, डेस्टिनी, ऑर्डर एंड रीजन. दिस वॉज अबाउट द एंशिएंट लॉ. एंशिएंट लॉ ने ये कहा था कि जो नेचुरल लॉ है, जो लॉ है उसके 3 मेन फीचर पाए जाते हैं, destiny, order and reason. According to him, reason is one of the main essential element of the natural law. जो रीजन है वो एक मेन असेंशियल एलिमेंट है लॉ के लिए. यदि हम नेचुरल लॉ की बात करते हैं तो नेचुरल लॉ इज द थ्योरी, इट इज अ थ्योरी ऑफ फिलोसफिकल थ्योरी. ये फिलोसफिकल थ्योरी के नाम से जानी जाती है, जिसका कहना ये है कि पर्सन्स हैव सर्टेन राइट्स, responsibilities, moral principles, moral values which are inherent in every human being and that is inherent in human nature. This theory is based on the idea that natural law are universal, which are based on cultural and custom. If we talk about the evolution and growth of natural law, that has taken place over a period of time through the various stages. कौन कौन सी स्टेज बताई गई है? एंशिएंट पीरियड, मिडिवल पीरियड, मॉडर्न क्लासिकल ईरा एंड द लास्ट वन इज मॉडर्न ईरा. यदि हम एंशिएंट टाइम की बात करते हैं तो जो कॉन्सेप्ट है नेचुरल लॉ का ये डेवलप हुआ था फिलोसफर हेराक्लिटस के हिसाब से. उन्होंने इसकी डेवलपमेंट के बारे में बताया था.
एंड उन्होंने ये कहा था कि इसके 3 मेन फीचर पाए जाते हैं नेचुरल लॉ के। कौन कौन से? डेस्टिनी, ऑर्डर एंड रीजन। अकॉर्डिंग टू हिम, रीजन इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ नेचुरल लॉ। If we talk about the natural law definition, natural law theory is a philosophical theory which states that person have certain rights, responsibilities, and moral principles, moral values, which are inherent in human nature. And this theory is based on the idea that natural law are universal, which are based on culture and custom. And this could represent the belief that they are inherent law, which is common to all the society. And the Aristotle suggested that the natural law theory have originated from the human conscience and not from human mind. एरिस्टोटल जी का कहना क्या था कि जो नेचुरल लॉ स्कूल है, नेचुरल लॉ जो थ्योरी है, इसका जन्म ह्यूमन कंसाइंस की वजह से हुआ है, ना कि ह्यूमन माइंड की वजह से। टॉक अबाउट द सेकंड पीरियड, दैट इज मिडिवल पीरियड। कैथोलिक फिलोसफर गेव ए न्यू थ्योरी ऑफ द नेचुरल लॉ। मिडिवल पीरियड के अंदर एक नई थ्योरी दी गई। थॉमस एक्विनास का व्यू ये था कि जो नेचुरल लॉ है, दिस थ्योरी हैव सिमिलर टू एरिस्टोटल, मतलब बिल्कुल एरिस्टोटल जैसी, मतलब उस थ्योरी को सेम उसके बारे में बताया गया था। उन्होंने कहा था कि दिस है 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द लॉ। यहाँ पे मिडिवल पीरियड के हिसाब से इसको 4 फोल्ड में डिवाइड किया गया। लॉ ऑफ द गॉड, नेचुरल लॉ, डिवाइन लॉ एंड ह्यूमन लॉ। तो नेचुरल लॉ इज द पार्ट ऑफ डिवाइन लॉ। यदि मिडिवल पीरियड की बात, तो उन्होंने क्या कहा कि जो नेचुरल लॉ है वो डिवाइन लॉ का ही भाग है। दैट एंड दे वर एग्री दैट द नेचुरल लॉ एमनेट्स फ्रॉम रीजन and it is applied by human beings to govern their affairs and relations. If we talk about the modern classical era, यदि हम मॉडर्न क्लासिकल इरा की बात करते हैं, तो दिस इज मार्क्ड बाय रैशनलिज्म एंड इमर्जेंस ऑफ न्यू आइडियाज। यहाँ पर नए आइडियाज का जन्म हुआ है। एंड दिस थ्योरी प्रिसपोजेस दैट द सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज द बेसिस ऑफ सोसाइटी। यदि हम मॉडर्न क्लासिकल इरा की बात करते हैं, तो उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को सोसाइटी का बेस बताया है। एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज मेंशन्ड इन प्लेटोज रिपब्लिक also. And in beginning, man lived in the natural state, and they had neither law nor the government. And man entered into an agreement. उन्होंने क्या कहा कि यदि हम पुराने ज़माने में जाएं, बहुत पुराने पीरियड में जाएं, तो वहाँ पे जो आदमी था वो अकेला रहता था। वहाँ पे मतलब कोई गवर्नमेंट नहीं थी, कोई कानून नहीं था, वो नेचुरल स्टेट में रहता था। और वहाँ पे आदमी ने एग्रीमेंट करने शुरू किए। वो क्यों किए उन्होंने? कि दैट इज नोन एज पैक्टम यूनियस, विच मीन प्रोटेक्शन ऑफ देयर लाइव्स एंड प्रॉपर्टी, जिससे वो अपनी लाइफ की और अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सके। इसलिए ही एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट दैट द सोसाइटी केम इनटू एग्जिस्टेंस। जैसे ही उन्होंने एग्रीमेंट करने शुरू करे, सोसाइटी एग्जिस्टेंस में आ गई। एंड दे अंडरटुक द रिस्पेक्ट ईच अदर, जिससे वो उन्होंने एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी शुरू करी और उन्होंने शांति से रहना शुरू कर दिया। दे एंटर्ड इन सेकेंड एग्रीमेंट। उसके बाद उन्होंने एक सेकेंड एग्रीमेंट करा जिसको पैक्टम सब्जेक्शन का नाम दिया गया। बाय विच पीपल हु यूनाइटेड टुगेदर अंडरटुक टू ओबे द अथॉरिटी। भाई जो लोग एक साथ मिलकर रहने लगे थे, उन्होंने अपने लिए एक अथॉरिटी डिसाइड करी और उन्होंने अपने जो अधिकार थे और जो फ्रीडम थी वो उस अथॉरिटी को गारंटी, मतलब उसको प्रोवाइड करने के लिए कहा कि आप हमारे अधिकारों की सुरक्षा करेंगे। बट वहाँ पे उन्होंने दे सरेंडर दीज राइट्स एंड फ्रीडम्स टू द अथॉरिटी गारंट एंड अथॉरिटी गारंटी द प्रोटेक्शन टू देयर राइट्स। वो जो, तो ये कुछ ऐसे मतलब फैक्ट्स हैं जिसकी वजह से आप ये कहेंगे कि मॉडर्न क्लासिकल इरा जिसको हम जानते हैं, तो जिसकी वजह से लो एग्जिस्टेंस में आया। यदि हम लास्ट पीरियड की बात करते हैं, तो दैट इज मॉडर्न इरा। जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट पीरियड वाज द मॉडर्न इरा एंड मॉडर्न थ्योरीज। इन द 19th सेंचुरी नेचुरल लॉ थ्योरी सजेस्टेड ए डिक्लाइन एंड रिसीव्ड ए सेटबैक। यदि हम 19th सेंचुरी की बात करते हैं, तो नेचुरल लॉ जो थ्योरी थी वो डिक्लाइन होने लगी, उसमें कमी आने लगी। एंड द प्रोफाउंडर्स ऑफ द एनालिटिकल स्कूल ऑफ द एनालिटिकल पॉजिटिविज्म, जैसे कि ऑस्टिन जी हैं, बेंथम जी हैं, उन्होंने नेचुरल लॉ स्कूल जो था उसको रिजेक्ट कर दिया पूरी तरह से। और वो किस ग्राउंड पर रिजेक्ट किया कि इट इज़ मिसलीडिंग एंड एम्बिग्यूअस। ये जो थ्योरी है नेचुरल लॉ थ्योरी, ये मिसलीडिंग है, ये एम्बिग्यूअस है, ये उनके द्वारा कहा गया। एंड दे कंप्लीटली डाइवर्स द मोरलिटी फ्रॉम द लॉ। उन्होंने क्या करा? मोरलिटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया लॉ से। आपको पता है कि ऑस्टिन या जो बेंथम जी हैं, उन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर मोरलिटी को कोई स्थान नहीं दिया था। An analytical approach to the study of law were more realistic and attracted jurists. It heralded a new era. इसकी वजह से एक नए युग का जन्म हुआ। तो दिस मीन्स दीज आर द सर्टेन, मतलब जो इरा थे जिनको डिवाइड किया गया नेचुरल लॉ के हिसाब से। वो टॉक अबाउट द 20th सेंचुरी के अंदर ये जो थ्योरी थी नेचुरल लॉ थ्योरी, इसको रिवाइव किया गया था दोबारा टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी।
यदि हम एंड की बात करते हैं 19th सेंचुरी के, दिस थ्योरी वाज फर्दर रिवाइव्ड ड्यू टू सर्टेन रीजंस। कुछ ऐसे रीजन है जिसकी वजह से इस थ्योरी को दोबारा रिवाइव करने की जरूरत पड़ी। कौन से ऐसे रीजन थे? नंबर 1, लीगल थ्योरी ऑफ 19th सेंचुरी एम्फेसाइज्ड or fabricated the importance of positive law, but they fail to satisfy the aspirations and desires of the people. लोगों की जो डिजायर थी, जो एस्पायरेशन थी, वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाई, एज दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द मोरलिटी एंड रीजन इन देयर एलिमेंट ऑफ लॉ। मैंने आपको क्या बताया कि ये जो थ्योरी थी, इन्होंने ना तो मोरलिटी को स्थान दिया था, ना ही कोई रीजनेबलनेस को स्थान दिया था, जिसकी वजह से वो लोगों की एस्पायरेशन, जो सेटिस्फेक्शन थी, उसको पूरा नहीं कर पाई, और जिसकी वजह से इस थ्योरी को रिवाइव करना पड़ा। सेकेंड रीजन वाज एंड द प्योर पॉजिटिव अप्रोच फेल टू सोल्व द प्रॉब्लम। यहाँ पे जो प्योर पॉजिटिव थॉट जो दी जा रही थी ऑस्टिन्स के द्वारा या बेंथम जी के द्वारा, वो पूरी तरह से मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, वो प्रॉब्लम्स को सोल्व नहीं कर पा रही थी ऑन द चेंजिंग कंडीशन, क्योंकि आप जानते हैं कि सोसाइटी चेंज हो रही है और उसके हिसाब से वो चेंजिंग कंडीशन के ऊपर फिट नहीं बैठ पा रही थी, जिसकी वजह से नेचुरल लॉ थ्योरी को कहीं ना कहीं रिवाइव करने की जरूरत पड़ी। बोथ द वर्ल्ड वार्स हैड क्रिएटेड द हैवक इन द वर्ल्ड एंड द मोरल्स एंड द प्रिंसिपल्स हैव नो प्लेस। जब वर्ल्ड वार हुआ, आपको पता है कि वहाँ पे मोरलिटी ने कोई मतलब उसको कोई स्थान नहीं दिया गया, एंड इट वाज रियलाइज दैट इट इज द नीड ऑफ द हार टू फॉर्मुलेट सच लॉज विच शुड बी बेस्ड ऑन नेचुरल लॉ प्रिंसिपल्स। भाई इस तरह के ये जो लॉ है, इनको कहीं ना कहीं फॉर्म द्वारा रिवाइव करना पड़ेगा, जिससे नेचुरल लॉ प्रिंसिपल्स को स्थान दिया जा सके, मोरलिटी को भी स्थान दिया जा सके, रीजनेबलनेस को स्थान दिया जा सके। एंड द थर्ड रीजन वाज विद द पेस ऑफ न्यू emerging and increasing problems, पॉजिटिविस्ट रियलाइज द हेल्पलेस। भी जो यहाँ पे नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई मतलब प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिसकी वजह से जो पॉजिटिविस्ट थे उनको ये लगा कि अब यहाँ पे वो अब प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से नेचुरल लॉ थ्योरी को रिवाइव करने की जरूरत पड़ी। एंड द लास्ट रीजन वाज इट वाज रियलाइज दैट abstract or a vague thinking was not completely futile, and as they become guidelines or a code of conduct. So these were the certain reasons due to which natural law theory was revived at the end of 19th century, means 20th century के अंदर इसको दोबारा रिवाइव किया गया। And these are the factors they led to the revival of natural law theory in the modification of new different approach। कहीं ना कहीं इसको नई अप्रोच मतलब नया जन्म दिया गया। एंड द मेन एक्सपोनेंट्स ऑफ द न्यू रिवाइव थ्योरी, यदि हम नई रिवाइव थ्योरी की बात करते हैं, इसके मेन एक्सपोनेंट्स यदि आप देखेंगे, दीज वर रडोल्फ स्टेमलर, प्रोफेसर रॉल्स, कोहलर एंड अदर्स। तो यदि आप मेन एक्सपोनेंट्स की बात करते हैं रिवाइव थ्योरी की, तो वो मेन कौन है? मिस्टर रडोल्फ स्टेमलर, प्रोफेसर रॉल्स, कोहेलर एंड अदर्स। These are the certain jurists who are the main revival of this theory. The principles of the Universal Declaration of Human Rights are the perfect example to show the reason why the natural law is important। यदि हम देखें UDHR जो है, उसके जो मेन प्रिंसिपल्स हैं, वो कुछ एग्जाम्पल है जो ये बताते हैं कि जो नेचुरल लॉ थ्योरी है, दैट शो द रीजन एंड इट एग्जिस्टेड टुडे। कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को, इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल आप कह सकते हैं। तो इफ टॉक अबाउट द नेचुरल लॉ स्कूल, इसके अंदर यदि आप देखेंगे तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, जो रिवाइव थ्योरी है उसके जो पहले प्रोपाउंडर है, ही इज द रडोल्फ स्टेमलर। इफ टॉक अबाउट द रडोल्फ स्टेमलर, ही वाज अ प्रोफेसर ऑफ द रोमन लॉ इन वेरियस यूनिवर्सिटीज इन जर्मनी। वो एक प्रोफेसर हुआ करते थे जर्मनी के अंदर, अलग मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर। ही डिफाइंड लॉ एज द स्पीसीज ऑफ विल, अदर्स रिगार्डिंग द सेल्फ अथॉरिटेटिव एंड इनवायबल। उन्होंने क्या कहा था? लॉ को स्पीसीज ऑफ विल, other regarding the self-authoritative and inviolable. According to him, law of nature means just law which harmonize the purpose in the society। यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि जो लॉ का मतलब है नेचुरल लॉ, जो नेचुरल लॉ मीन्स लॉ ऑफ नेचर विच इज जस्ट लॉ, जो सही है, मतलब गलत नहीं है, विच हार्मोनाइज द पर्पज इन द सोसाइटी। एंड द पर्पज ऑफ लॉ इज नॉट the perfect, in purpose of law is not to protect the will of the one but to unify the purpose of all। यहाँ पे लॉ का जो मेन पर्पज है वो विल को प्रोटेक्ट करना नहीं है, वो यूनिफाई करना है उसका मेन पर्पज, सबको मतलब जो यूनिफाई कर सके, सबको सेटिस्फाई कर सके। इट इज द विल ऑफ पीपल दैट्स एमनेट्स फ्रॉम देम। भाई वहाँ पे जो लोगों की जो सोच है, वो जो कहीं ना कहीं उसको दैट अनेबल्स देम टू सिक्योर देयर पर्पज,
वो कहीं ना कहीं उनके पर्पस को सिक्योर करने में हेल्प करेगी अंडर द सोशल ऑर्गेनाइजेशन। एंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ हैज बीन कॉल्ड एज बाय स्टेमलर एज नेचुरल लॉ। यही जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, इसी को नेचुरल लॉ का नाम दिया गया था प्रोफेसर स्टेमलर के द्वारा, विद ए वेरिएबल कंटेंट। तो ये मैंने आपको बताया प्रोफेसर स्टेमलर के हिसाब से। तो फॉर हिम लॉ इज जस्ट द हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द मैन सोशल लाइफ। इट्स एम्स एट preservation of the freedom of individuals. So these are the certain principles told by Professor Stamler. There are the two fundamental principles. कौन से दो फंडामेंटल प्रिंसिपल बताए गए थे? प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट एंड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. These are the two main fundamental principles. According to him, law of nature means just law which harmonizes the purpose of the society. भाई लॉ ऑफ नेचर का मतलब क्या होगा कि जस्ट लॉ जो सही है, जो कहीं ना कहीं लॉ जो सोसाइटी का जो पर्पज है उसको हार्मोनाइज कर सके, उसके अंदर बैलेंस बिठा सके। एंड द पर्पज ऑफ लॉ इज नॉट टू प्रोटेक्ट द विल। भाई यहाँ पे जो मेन पर्पज है लॉ का वो विल को प्रोटेक्ट करना नहीं है, यूनिफाई द पर्पज ऑफ ऑल। तो एवरीवन इज बाउंड टू रिस्पेक्ट द राइट्स और क्लेम्स ऑफ अदर्स एंड कंट्रीब्यूट हिज शेयर टू द लाइफ ऑफ द कम्युनिटी। हर बंदे की का मतलब किस चीज़ से बंधा हुआ है कि वो अपने राइट्स का रिस्पेक्ट करे और दूसरों के अधिकारों की भी रक्षा करे। ये नहीं कि दूसरों के अधिकारों को मतलब वायलेट करे। एंड कंट्रीब्यूट हिज शेयर टू द लाइफ ऑफ कम्युनिटी, और वो अपने मतलब कहीं ना कहीं जो लाइफ ऑफ कम्युनिटी है उसको भी मतलब उसके अंदर भी अपना कंट्रीब्यूशन दे। ही बिलीव दैट लाइज नेसेसरी a priori, that is because it is inevitably implied in the idea of cooperation. वो क्या कहते हैं कि आइडिया ऑफ कोऑपरेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब अब वो अपने अधिकारों की तो रक्षा मतलब को ले परंतु दूसरे के अधिकारों की भी रक्षा करे। तो ये जरूरी हो जाता है। ए जस्ट लॉ सीक्स टू प्रिजर्व द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल विद द इक्वल फ्रीडम ऑफ अदर इंडिविजुअल्स। भाई आपने ठीक है, आपको अपनी फ्रीडम चाहिए लीजिए, परंतु आप दूसरों की फ्रीडम का भी ध्यान रखिए, वही जस्ट लॉ कहलाएगा अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर स्टेमलर। तो यहाँ पे उन्होंने एक नए आइडिया को जन्म दिया है, दैट इज द स्पीसीज ऑफ विल अदर रिगार्डिंग द सेल्फ अथॉरिटी। तो ये मैंने आपको बताया प्रोफेसर स्टेमलर के हिसाब से। द नेचुरल लॉ स्कूल, इफ वी टॉक अबाउट द जोसेफ कोहलर, his thought were influenced by the Hegel. According to him, law is standard of conduct, which is the consequence of inner impulse of human being that urges him towards the reasonable form of life. It also drives its validity from the moral and ethical standard in the society, so that he laid down stress upon the moral and cultural development of the society. This means he says that there is no external law and the law subsumes itself in accordance with the advancement of the society. तो जो प्रोफेसर कोहलर जी हैं वो ये कहते थे कि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल लॉ एग्जिस्ट नहीं करता। जो लॉ होता है वो अपने आप को सेफ मतलब साफ करता है। कहाँ पे साफ करता है? इन अकॉर्डेंस विद द एडवांसमेंट ऑफ द सोसाइटी। जैसे जैसे सोसाइटी एडवांस होती जाएगी जो लॉ है वो अपने आप ही सेफ लेता चला जाएगा। एंड ही अटेम्प्टेड trying to be realistic, trying to adopt with the changing times. So this was all about the Professor Kohler. If we talk about the next jurist, that is Finis. Finis is one of the famous jurists of the present century. According to Professor Finis, natural law is a set of principles of practical reasonableness in ordinary human life and human community. His proposition is that there are certain basic goods for human being which are as follows. यदि हम प्रोफेसर फिनिस जी की बात करते हैं तो वो नेचुरल लॉ स्कूल के एक प्रेजेंट सेंचुरी के कह सकते हो कि वो जूरिस्ट माने जाते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर फिनिस, नेचुरल लॉ जो है दैट इज द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिकल रीजनेबलनेस। भाई वो एक ऐसे प्रिंसिपल्स का समूह है जिसकी एक प्रैक्टिकल रीजनेबलनेस है इन ऑर्डिनरी ह्यूमन लाइफ एंड ह्यूमन कम्युनिटी। उसकी जो उनकी जो प्रपोजिशन है, हिज प्रपोजिशन इज दैट देयर आर सर्टेन बेसिक गुड्स फॉर ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे जो मतलब ह्यूमन बीइंग के लिए कुछ बेसिक गुड्स यहाँ पे फिक्स किए गए हैं। कौन कौन से बेसिक गुड्स हैं? दीज आर नंबर वन, लाइफ। द टर्म लाइफ रिवील्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड इन गुड शेप फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। भाई लाइफ की जब हम बात करते हैं तो लाइफ जो है वो रिवील करती है हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जो लाइफ से जुड़ी जितनी भी एस्पेक्ट है वो सबको इंक्लूड करेगी। एंड इन गुड शेप मतलब जैसे कि आप सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो लाइफ के लिए ज़रूरी होती है। सेकेंड वन इज नॉलेज। नॉलेज इज ए प्रोसेस ऑफ नोइंग ऑफ अननोन विद द हेल्प ऑफ
सेंस, कि नॉलेज का मतलब क्या है, ज्ञान होना, कि जो चीज़ तुम्हें नहीं जानकारी तो उसको आप सेंस की सहायता से उसको आप पहचान करेंगे, उसका नॉलेज एक्सेप्ट करेंगे। इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड एलिमेंट, दैट इज द सोशेबिलिटी ऑफ द फ्रेंडशिप। डूइंग समथिंग बेस्ट फॉर द सेक ऑफ one's friend well-being is known as sociability of the friendship. If we talk about the next factor, that is role. Role means it is a expression of status. It is a expression of status of human being in practical form. Such role is protected and recognized by law. So these are the certain basic goods for human being. तो ये कुछ ऐसे बेसिक गुड्स हैं जो ह्यूमन बीइंग के लिए माने जाते हैं और जिनको फॉलो किया जाता है। तो ये अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर फिनिश के द्वारा बताए गए हैं। इफ वी टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल रीजनेबलनेस, इट इज अ लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द आइडियाज एंड द डिसीजंस इन प्रैक्टिकल सिचुएशन। दिस इज मेजर ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। तो यदि हम प्रैक्टिकल रीजनेबलनेस की बात करते हैं तो ये एक तरह से लॉजिकल एक्सप्रेशन है उन आइडियाज़ का या उन डिसीजंस का जो प्रैक्टिकल सिचुएशन में अपनाए जाते हैं। एंड दिस इज द मेजर ऑफ जस्ट। भाई ये एक तरह से यहाँ पे मेजरमेंट कराया जा रहा है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, तो वो उसकी एक प्रैक्टिकल रीजनेबलनेस कहलाएगी। डिस्पाइट ऑल दीज मेरिट्स ऑफ नेचुरल लॉ फिलोसफी, इट वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर वेरी वीकनेस एंड डीमेरिट्स। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे नेचुरल लॉ स्कूल के बारे में, जो इसको भी क्रिटिसाइज किया गया था क्योंकि इसके अंदर भी कई कमियां और कई डिमेरिट्स पाए गए थे, जैसे कि मोरल प्रोपोजिशन ought to be may not always conform to the needs of the society। भी क्या चीज़ होना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उस सोसाइटी की जो नीड्स है उसको पूरा कर पाए, जो कि फिलोसफिकल जो आपका जो नेचुरल स्कूल है जिसको फॉलो कर रहा था। सेकेंड वन इज कॉन्सेप्ट ऑफ मॉरलिटी इज ए concept of morality is a varying concept changing from time to time. It is futile to think the its universal applicability of the law। तो दिस मीन्स यदि हम कॉन्सेप्ट ऑफ मॉरलिटी की बात करते हैं तो ये जो समय अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से ये चेंज होता रहता है, फिक्स नहीं होता। और ये सोचना कि इसकी एक यूनिवर्सली अप्लीकेबिलिटी होगी, ये बिल्कुल फ्यूटाइल, एक तरह से गलत आइडिया है हमारे दिमाग में, ये सही नहीं है। And the third one is also the rules of morality in natural law are not responsible to change, but the legal rules needs change with the changing needs of the society। यदि हम रूल्स ऑफ मॉरलिटी की बात करते हैं तो नेचुरल लॉ स्कूल के अंदर यदि आप देखेंगे तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि वो चेंज मतलब कहीं ना कहीं जो चेंज को अडोप्ट कर पाएंगे। आल्सो द लीगल रूल्स ऑफ मॉरलिटी नेचुरल लॉ आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू चेंज। तो यहाँ पे नेचुरल लॉ स्कूल की जो बात करते हैं तो उसके अंदर ये कहा गया था कि जो लीगल रूल्स हैं वो मोरलिटी के जो लीगल रूल्स हैं वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है चेंज के लिए। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि जो लीगल रूल्स की आप बात करते हो तो उनको सोसाइटी की चेंज ज़रूरतों के साथ में चेंज होना पड़ता है, वो फिक्स नहीं हो सकते। एंड द लीगल डिस्प्यूट्स मे बी सेटल्ड बाय द लॉ कोर्ट्स। यदि हम लीगल डिस्प्यूट्स की बात करते हैं तो उनको लॉ कोर्ट्स के द्वारा सेटल किया जाता है। बट डिस्प्यूट्स कंसर्निंग द मोरल एंड नेचुरल लॉ कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू जुडिशियल स्क्रूटनी। भाई यदि हम नेचुरल मतलब मोरल या नेचुरल लॉ की बात करते हैं, उससे संबंधित डिस्प्यूट्स की बात करते हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि उसको जुडिशियल स्क्रूटनी के द्वारा उसको सोल्व किया जाए, वो उसी का ही विषय बने। तो यदि हम बात करते हैं लीगल डिस्प्यूट से तो वो लॉ कोर्ट्स के द्वारा उसको सेटल किया जा सकता है। परंतु ऐसे डिस्प्यूट जो मोरल या नेचुरल लॉ के संबंधित हैं तो उसको जरूरी नहीं है कि वो जुडिशियल स्क्रूटनी के द्वारा उसका विषय बनाया जाए। तो thus we can conclude that the concept of natural law has changed from time to time. It has influenced the position relating to the positive law। नेचुरल लॉ हम ये मानते हैं कि जो नेचुरल लॉ का जो कंसेप्ट है ये समय अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से चेंज होता हुआ आया है, परंतु इसने जो पॉजिटिव लॉ का जो प्रभाव था उसको चेंज कर दिया है। इट हैज इन्फ्लुएंस, उसको प्रभावित कर दिया है, एंड हैज मॉडिफाइड इट, उसको पूरी तरह से मॉडिफाई किया है। एज वी नो लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट नॉट ओनली द सोशल कंट्रोल। जो लॉ होता है ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, ना कि सोशल कंट्रोल, बट आल्सो द सोशल प्रोग्रेस एज वेल। इट मस्ट हैव सर्टेन एंड्स and natural law, the ones have essentially been theories regarding the ends of law, and this theory have helped in the legal development as a number of natural law principles have been embodied in the legal rules in various legal systems,
that have become their golden principles. If we talk about the certain characteristics of natural law school, number one, natural law is universal and common to all humanity. यदि हम नेचुरल लॉ स्कूल की कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स की बात करते हैं तो जो नेचुरल लॉ स्कूल है इसका जो प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सली अप्लीकेबल माना जा रहा है और इसको ये कॉमन टू ऑल ह्यूमैनिटी, ये सबके लिए कॉमन है. एज पर दिस स्कूल थ्योरी देर आर इनहेरेंट लॉ विच आर कॉमन टू ऑल द सोसाइटी. यहाँ पे कुछ ऐसे इनहेरेंट लॉ है जो हर सोसाइटी के लिए कॉमन है. सेकेंडली, नेचुरल लॉ इज ऑल्सो नोन एज डिवाइन लॉ. जैसे मैंने आपको बताया था जो नेचुरल लॉ है इसको डिवाइन लॉ, मोरल लॉ, लॉ ऑफ गॉड, लॉ ऑफ नेचुरल नेचर, लॉ ऑफ रीजन, यूनिवर्सल लॉ, दीज आर द सर्टेन नेम्स विच आर गिवन टू द नेचुरल लॉ स्कूल. ये नेचुरल लॉ को ही दिए गए दूसरे कई नाम हैं. एंड दिस स्कूल टेल्स अस द लॉ इज रैशनल एंड रीजनेबल. ये स्कूल हमें ये बताता है कि जो लॉ है वो रैशनल और रीजनेबल होना चाहिए, मोरलिटी के आधार पे होना चाहिए. एंड द नेचुरल लॉ प्रिंसिपल्स आर द लॉज विच आर लॉजिकल प्रोग्रेशन. जो नेचुरल लॉ प्रिंसिपल्स हैं, जो प्रपोजिज हैं, वो कहीं ना कहीं लॉजिकल प्रोग्रेशन के आधार पे होने चाहिए, जो मोरली सही होने चाहिए. सो द एक्शंस विच आर मोरली रोंग, इसका मतलब ये होगा कि जो ऐसे कार्य जो मोरली रोंग माने जाते हैं वो अगेंस्ट द लॉ माने जाएंगे. एज पर दिस स्कूल सोर्सेज ऑफ द नेचुरल लॉ कौन कौन से माने जाएंगे? गॉड, नेचर, रीजन, दीज आर द सर्टेन सोर्सेज एज पर स्कूल ऑफ द नेचुरल लॉ. नेचुरल लॉ स्कूल के हिसाब से जो लॉ के जो मेन आप देखोगे सोर्स है, स्रोत है, वो गॉड, नेचर और रीजन माने जाते हैं. एंड द डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल लॉ हैज बीन क्लासिफाइड इन 4 स्टेजेस. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो नेचुरल लॉ की जो डेवलपमेंट है उसको 4 स्टेजेस में क्लासीफाई किया गया था. एंशिएंट पीरियड, मिडिवल पीरियड, एंड द प्री क्लासिकल इरा, एंड द मॉडर्न पीरियड. So these are the certain periods in which development of natural law school had taken place. तो दिस वॉज ऑल अबाउट द नेचुरल लॉ स्कूल. ये मैंने तो सारा का सारा आपको नेचुरल लॉ स्कूल के बारे में डिस्क्राइब किया है. इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू मस्ट पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द फर्दर अपडेट. थैंक यू.